Hello, children. How are you? I am here with the topic water resources. So, about 97. How much water? Water, everybody knows that it is most important. It is the symbol of life. It is making the earth unique planet because of the water, and the life is possible on the earth. So, because of water, the earth is also known as the blue planet, and about 97% the total water, if we divide into the percentage, 97% in oceans and seas, which is saline water we cannot use for किसी anything, किसी भी चीज़ के लिए हम उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में 2% बचा, जो कि आइस केप्स, ग्लेशियर्स एंड ऑन द Antarctica or any other places. This is icebergs. It is present. So we cannot use it also again, and it is dangerous also when it will be melted. Then Earth will be drowned in that water. All over there will be water. The land part will not be there. So people are fearing that global warming is creating a danger for the life. Now only 1%, remaining 1%, 97 plus 2, 99, and only 1% is left, which is fresh water, and we can use it. Out of this fresh water, again we can say that uh, we cannot use it, which is present in the environment in the form of moisture. So only which is usable, it is 0.1% water is there which we can use, which is present in the lakes, in the rivers, in the ponds, and underground water. Then, so only it, while it is renewable resource, but still there is a problem that if we will not think about it, it will be finished very soon. It will not be appropriate, it will not be enough. You may have noticed in many cities, many places, many colonies, that the people are standing with the pitchers, with the buckets, and they are collecting the water after standing in the long queue for long hours. Then they are getting 1 or 2 buckets of water, and they are using it for whole day. While if you are going in any hotel, the five-star hotel, and in this place, the people are staying there, they are using it mercilessly. 25 to 30 buckets of water they are using in one day. So misuse is there. At your home, if you see, around you, if you see, you will find out that the people are using mercilessly the water. Then what will be there? The scarcity of the water. Now, source of the water, if we talk about, the main sources of water are rain, the rainfall. For the fresh water, we are getting maximum from the rainfall. Then we are getting from the lakes, from the rivers, from the ponds, and um, underground water. Underground water, now we have made it the main source of the water, fresh water. Each one is having the source. They have tube wells. They are established the submersible, and through that they are taking out the underground water, and it is fresh water. We are using it. Then most important thing is water table. When we are talking about underground water, then we are talking about the water table also. What is water table? Water table is exactly the upper layer of the water. When we are going underground, we are taking out, extracting the water from the pipes or from the submersibles, from the pumps. Then whatever the upper layer of the water, that is called as the water table. I have told you one experiment you can do at home, that how you can find out what is water table. Take a tub, fill the water in that, cover it with the wooden cover or any other cover. Think that it is the upper part of the wooden cover, that is your land. When you dig from that, you will make the hole on that and reach to that, and whatever the upper side, upper layer of the water, that is called water table. Inside the earth, that is
water table. So what is water table? Underground water, whatever the upper layer of the water, that is called as the water table. In the summers the water table get down, and in the rainy season means it is changing with the season. In the rainy season water table increases, and in the summers the water table decreases. In the water bodies which are open, in that also water table, what is that? The upper layer is decreasing in the summer and increasing in the rainy season. So scarcity of water generally rises in the summer season. When you have listened that your parents are saying and your around people are saying that पानी नीचे चला गया है, पाइप डलवाना पड़ेगा और पाइप डलवाना पड़ेगा और बार बार बोरिंग करवानी पड़ती है, किस लिए? कि वाटर टेबल नीचे चला गया. पहले कभी 100 फीट था, फिर उसके बाद में 110 फीट गया, फिर 120 फीट गया, फिर 160 गया, 170 गया. इट मीन्स वाटर टेबल इज गेटिंग डाउन. व्हाई इट इज गेटिंग डाउन? जितनी तेजी से वो नीचे स्टोरेज नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा तेजी से हम उसको खर्च कर रहे हैं. इस वजह से वो वाटर टेबल खत्म हो रहा है. तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. जितनी तेजी से वाटर साइकिल से वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स जब बताया, जितनी तेजी से रिन्यू नहीं हो रहा उतनी तेजी से हम उसको खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी ऑफ वाटर डे बाय डे बढ़ रही है. तो जब स्कैर्सिटी ऑफ वाटर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट थिंक अबाउट इट थॉटफुली. वी मस्ट यूज द वाटर. जब हमें एक बकेट वाटर की ज़रूरत है तो एक बकेट ही खर्च करना है. ये नहीं कि एक बकेट की ज़रूरत थी 10 बकेट हमने कर लिया. सबमर्सिबल का मोटा पाइप हमने खोला और पूरी सड़क को धुलाई कर दी. वी मस्ट नॉट डू दैट थिंग. वी मस्ट सेव वाटर, सेव लाइफ. And in the activity what you have to do, that you will take one drawing sheet, and on that you have to make one poster regarding that conservation of water. How can you conserve water? That is your activity. You have to do it on the drawing sheet and keep it safely with you. When you will come to school, then you will show it. Okay, submit it. You will write the slogans also over that, just like I have told you one slogan, save water, save life. You can make other slogans also, and many posters you can see different places. So you can make the poster over that, writing the slogan also. One slogan must be there over that, that only it is called as the poster. So poster making activity is there. It may be considered as the project also, because if I will say that write 10 lines, write one paragraph about it, then it will be considered as project. Okay, so right now you have to do only the activity. Don't write any paragraph right now until I am saying that thing. Okay, so now let us see that scarcity of water. What are the causes of scarcity of water? पहले ही मैंने बताया कि किस तरह से हम मर्सीलेसली उसको यूज कर रहे हैं. उसके बाद में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर का रीज़न. कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी है और कहीं बहुत कम है. आई वॉज टेलिंग यू दैट हाउ दैट वाटर कहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी ज़्यादा है. इक्वेटर पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ साथ पानी भी ज़्यादा बरसता है. ठीक है, लेकिन अगर हम इक्वेटर के ऊपर और नीचे चले जाएं, if we go upside and down of the equator. Now what is equator? Already you have studied in the lower classes के अर्थ ये आपकी है, इसका सेंट्रल जो पार्ट है 0 डिग्री लैटिट्यूड. ठीक है, ये क्या है? इक्वेटर. Understood? Now if we are going 20 degrees above the equator, 20 degree above the equator and 20 degree below the equator, these places are basically feeling the scarcity of water. Maximum deserts of the earth are found here. You can see Sahara desert is found here, right? And you can find out that the Thar desert is also in that region. It comes
and so the scarcity of water. Next reason is there under development. डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे, तो भी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर का एक रीजन है अंडर डेवलपमेंट. एंड देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा यूज होगा. आपके पास एक बकेट पानी था केवल, और आप सोच रहे थे कि आज पूरे दिन का आपके घर का काम चल जाएगा, खाना बन जाएगा, पानी पीने में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, और कोई गेस्ट आ गया तो उसको भी पिला देंगे. एक बकेट वाटर बहुत था पूरे दिन के लिए, खाना बनाने के लिए और पूरे दिन के पीने के लिए, सबके लिए, पूरी फैमिली, 4 लोगों की फैमिली के पीने के लिए एक बकेट वाटर, जो 20 लीटर बॉटल वाटर भरा रखा था एक बकेट में, वो 20 लीटर आपके लिए पूरा एप्रोप्रिएट था, इनफ था. लेकिन आपके घर 8 लोग आ गए मेहमान. सडनली वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने सोचा मथुरा वृंदावन घूमते हुए चलेंगे और रिश्तेदारों से भी मिल लिया जाएगा, और आ गए 8 लोग. नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट वाटर? स्कैर्सिटी हो गई. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पर पानी की कमी हो सकती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर. बहुत सारी जगह पे जो पानी अवेलेबल है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का अवेलेबल है. जैसे हमारे यहाँ जमुना जी की वजह से, शायद जमुना जी के किनारे किनारे वाली जगह जो पानी है वो सलाइन वाटर है. जमुना जी का पानी सलाइन है थोड़ा सा, तो इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ के ड्रेन पाइप्स कहाँ डाल देते हैं, जमुना जी में डाल देते हैं, तो उसकी क्वालिटी जो है वाटर की खराब होती जाती है, कंटेमिनेटेड वाटर जाता है. उसके अलावा जो हम अपर लेयर ऑफ सॉइल है उसको भी कंटेमिनेटेड रखते हैं, तो वहाँ से जो वाटर सीप डाउन होकर के जाता है, दैट वाटर इज ऑल्सो कंटेमिनेटेड, एंड दैट कंटेमिनेटेड वाटर इज decreasing the quality of the water, and we are not able, that water is not usable, we cannot use it, और अगर यूज भी करते हैं तो वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है. एंड सो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी absolutely pure and free of all sorts of harmful objects. जो ड्रिंकिंग वाटर है एब्सोल्युटली फ्रेश होना चाहिए, कंप्लीटली फ्रेश होना चाहिए. इसीलिए आजकल हम लोगों के यहाँ सबमर्सिबल के साथ साथ एक और नीड बन गई है. वो क्या नीड है हमारी? आरओ वाटर. अगर हम अपने आरओ लगा लेते हैं तो आरओ लगवा लिया, प्यूरिफायर लगवा लिया, और नहीं तो हम आरओ वाटर मार्केट से परचेज करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि प्योर वाटर हमारे लिए एसेंशियल. और हमने जो अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर आ रहा था, निकाल रहे थे, उसको भी हमने इम्प्योर कर दिया बाय कंटेमिनेटिंग द सॉइल, राइट. और रिवर वाटर, जो फ्रेश वाटर हमें मिलता था, सबसे ज़्यादा अच्छा पानी मिलता था, गंगा जी का पानी लेकर आते थे घर, तो वो सालों तक खराब नहीं होता था. और अब गंगा जी का पानी भी खराब हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को डाल दिया है. सो इसके अलावा आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. So these multi-purpose river valley project क्या होते हैं? That if we talk about the multi-purpose river valley projects, multi-purpose, just as it is clear by the name, कि इससे एक नहीं बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व होते हैं. पहला पर्पस है इरिगेशन. इससे क्या होता है? खेत में पानी डालने के, सिंचाई के काम में लिया जाता है. रिवर का पानी, उसको डैम बना के रोक लिया जाता है, और फिर उसके ऊपर में प्रोजेक्ट बनाया जाता है पूरी तरीके से उसको कई कामों के लिए. तो कैनाल्स निकाली जाती हैं उस रिवर से, जो कि इरिगेशन में काम आती है. दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. पानी को डैम पे रोक लिया गया, डैम से, फिर उसके बाद में नीचे प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं जिसके ऊपर पानी को तेजी से गिराया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. थ्रू वायर्स इट इज सेंड टू द डिफरेंट हाउसेस और डिफरेंट प्लेसेस वेयरएवर इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, राइट. और उसके बाद में तीसरा यूज क्या होता है इसका? फ्लड कंट्रोल. जब हमने डैम बना लिए तो ये फ्लड को फ्लड कंट्रोल करता है, ठीक है. इट कंट्रोल्स द फ्लड. द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर हेल्पफुल इन द कंट्रोलिंग द फ्लड्स. अब
अभी आप आज से 15-16 साल पहले की सिचुएशन सोच के देखिए कि जब जमुना जी में पानी बढ़ता था तो पूरे घाटों पर पानी भर जाता था। बहुत लोग कहते थे जमुना जी चरण छूने आ रही हैं द्वारकाधीश महाराज के। लेकिन ये बाढ़ होती थी, हमेशा बाढ़ का प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन जब से गोकुल बैराज बना, यानी एक रिवर वैली प्रोजेक्ट बना दिया गया उसके ऊपर, तो उससे क्या हुआ कि आपका बाढ़ आनी बंद हो गई, क्योंकि उससे पानी को रोक लिया जाता है। तो कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द फ्लड्स ऑल्सो। और हमारे देश में बहुत सारे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको कि आपकी बुक में एक टेबल में बनाया गया। ये टेबल भी आप अपने नोटबुक में जब क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो उसके साथ में आप इस टेबल को बना लोगे, विच इज गिवन ऑन 152 पेज। प्रोजेक्ट रिहंत प्रोजेक्ट, और रिवर का नाम है रिहंत, रिवर के ऊपर बना हुआ है। देन कोसी प्रोजेक्ट, इट इज मेड अप ऑन कोसी रिवर। Then Chambal project, that is on Chambal river. Then Sardar Sarovar on Narmada river. These are the many more are projects, but in your book only few are given. No, few more are given in table 3.1. Damodar Valley project on Damodar river. Bakra Nangal project on Satluj river. Hirakund on Mahanadi. Tungabhadra on Tungabhadra river, and Nagarjun Sagar on Krishna river. That you will do on the map also. I will give you the map in the activity. I will send it to you, right? So that you can do it. That is map work. Okay. Now conservation of water, we can study about the conservation of water. Already बताया हुआ है आपको। पहला तो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, हम बहुत सारे फॉरेस्ट लगा सकते हैं जिससे कि वो रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं और पानी के रन ऑफ को रोकते हैं, जिससे कि वो पानी सीप डाउन कर जाता है और अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज होता है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ फ्रेश वाटर इज इरिगेशन। एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स हमें यूज करने चाहिए जिससे कि पानी का वेस्टेज ना हो और प्रॉपर पहुंचे। एक चौड़ा पाइप लिया हमने और अपने पंप के साथ में लगा दिया, उससे क्या होता है कि जो उस जगह पे है गड्ढा बन जाता है और ऊपर की मिट्टी बहकर दूसरी जगह चली जाती है और वो आपकी फर्टिलिटी को कम करती है। उसकी जगह अगर हमने स्प्रिंकल पंप्स लगाए तो स्प्रिंकल पंप्स चारों तरफ घूम घूम कर प्रॉपर जहाँ जितने पानी की नीड है वहाँ पर वो पहुँचाते हैं। उसके अलावा हम वहाँ पर और भी दूसरे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी नालियाँ सी बना सकते हैं मेड़ की तरह से और उसके बीच में पानी डाल सकते हैं। दे कैन इरिगेट इवन अनड्यूलेटिंग लैंड ऑल्सो। जो स्प्रिंकल्स लगाते हैं, जो अनइवन लैंड है उसको भी पूरी तरह से प्रॉपरली ये इरिगेट कर देते हैं। देन ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन हम यूज कर सकते हैं। ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि पानी को घुमा करके और यूपर से करके नीचे डाला जाता है और उसमें भी ट्रिकल होती है। उसके अलावा हमारे पास में हम इटालियन भी यूज करते हैं, इटालियन मेथड भी यूज करते हैं। और इंडस्ट्रियल वाटर में भी रिसाइकल, जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसको हम रिसाइकिल करें तो उससे क्या होगा कि वो पानी बार बार मशीनों के लिए यूज हो सकता है और वेस्टेज पानी की कम हो जाएगी। और क्यों हम इंडस्ट्रीज में वाटर को यूज करते हैं? व्हाई द इंडस्ट्रीज नीड वाटर? फॉर द कूलिंग डाउन ऑफ द मशीन्स द वाटर इज नीडेड। नाउ इन डोमेस्टिक यूज बात हम बहुत कर चुके हैं इस बारे में कि हमें किस तरह से अवॉइड करना चाहिए वेस्टेज को। और उसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने घर में जब घर बनवाएं तो छत पर से एक स्लैंटिंग थोड़ी सी रूफ का थोड़ा सा अपना स्लोप एक प्रॉपर रखें, उसमें पाइप लगवाएं, पाइप को नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बनवाएं, उसके साथ कनेक्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी पानी ऊपर छत पर आएगा वो सीधा का सीधा उस टैंक में कलेक्ट हो जाएगा और फिर उस टैंक के थ्रू हम उस पानी को निकाल करके, चाहे वो पाइप से करके निकालें हम और चाहे उसके साथ में हम एक नल लगवा सकते हैं जिससे कि पानी हम ले करके उसको यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट धुलाई के काम में, कपड़े धोने में और कूलर वगैरह में जो भरते हैं पानी, वो हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर तो उसको प्योर करके और ड्रिंकिंग में भी लोग यूज़ करते हैं। और जानवर हैं अगर घर में हमारे बफेलो और काऊ अगर हमने रखे हुए तो उनके लिए भी उसको यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट जब आपकी एग्जीबिशन लगती है
तो एग्जीबिशन में ये प्रोजेक्ट हमेशा बनवाया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला, और बच्चे बहुत ही मन से इसको बनाते हैं. सो दिस इज द चैप्टर. So for today that's enough, I think, and we'll do the question answers in the next video. Okay, thank you, have a nice day. We'll meet again in the next video.